Hello students. Today we start the new chapters. Okay, of the what 12. Okay, it is very important chapter. Chapter number 1. Okay, the name is a relation and function. You already basic concept is clear from the standard 11, but recall is must. Okay, so first we take the topic of function, not relation, right? So first we start the functions topics, right? So what is a function? You learn in standard 11. Understand? So the function and relation, so many types of the functions. Okay, you taught already in a previous years and the standard in the standard 11, right? Okay. So the function has a set of ordered pairs. It depends on the relation, and the set is a correspondence, right? They are the two way. So the first way is simple, right? Is a function has a set of the ordered pair. So it's very simple. Let A and B are the two non-empty sets, right? Okay. So a relation F from A to B, so that a subset of A cross B. A cross B matlab you know that ordered pair या Cartesian pair, right? Ordered pair is called the function from A to B, right? यानी जो A क्रॉस B के अंदर जो भी एलिमेंट जितने भी ये सबसेट्स है, all are the okay function from A to B. Understand? Okay. So A is the normally this time is domain and B is called your codomain, right? Okay. And A cross B, that means your the answer, that means range. Now A to B, if what the two major things. So in these definitions, for each एलिमेंट्स मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो स्मॉल एलिमेंट्स है वो सेट ए में है, राइट? एंड देयर एग्जिस्ट बी इन सेट बी, यानी ए के रिलेटेड स्मॉल ए के रिलेटेड कोई ऐसा नंबर या कोई रिलेशन बी के अंदर है, राइट? सो सच दैट ए बी इज बिलोंग्स टू एफ, तो दिस ऑर्डर्ड पेयर इज बिलोंग्स टू एफ, मतलब वो फंक्शन के अंदर है. सेकंड पॉइंट, व्हेन द ए बी बिलोंग्स टू एफ, यानी ए के रिलेटेड कोई भी उसकी इमेज है, ओके, और ए सी बिलोंग्स टू एफ भी है, तो डेफिनेटली बाय डेफिनेशन ऐसा है कि बी इज इक्वल टू सी है, यानी दोनों इमेज अलग अलग नहीं है, राइट? इट इज कॉल्ड द फंक्शन, राइट? ओके. सो द इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ. तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है बच्चों के, सेट ए में से जितने भी एलिमेंट्स है उसकी कोई ना कोई इमेज आपको सेट बी में मिलेगी, जिसको हम लोग बी कहते हैं, राइट? तो वो फंक्शन है. अगर एक रिलेशन एक इमेज समझ लो कि एलिमेंट ए की कोई दो इमेज बी में नहीं होगी, ओनली वन एंड ओनली वन इमेज ही होगी, तो वो फंक्शन है. अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके. तो इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर पे, दैट मींस द रिलेशन फंक्शन, मतलब रिलेशन के ऊपर ए फंक्शन की डेफिनेशन है. ओके. फंक्शन, तो लेट ए एंड बी, ओके, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ओके, इज अ रूल या मेथड भी हो सकता है, एंड करस्पॉन्डेंस, ओके, व्हिच एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द सेट बी, राइट? सो सच दैट इज सिंपल. ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए is बहुत क्लियर है कि all elements of set A to the in set B, यानी A की बराबर कोई ना कोई इमेज B में आपको मिलेगी. सेम वे and elements of set A to a set is associated to a unique elements in set B. आया unique मतलब one and only, तो A की कोई एक ही इमेज आपको B में मिलेगी. Understand? So that's why it is called a function from A to B. Okay, so F is a function set from A to B, and we write F from A to B. Understand? If function okay, if function f from A to B, if function f from A to B, right? So A is called the domain of the function and B is called the codomain of function. Understand? So A is called the domain of function and B is called the codomain of function. So what is range? Okay, so the image of f image of A inside B, right? The set of all f images of A, okay, inside B is called the range of the functions, right? So range of function, that means is denoted by B is equal to F. We say that B is equal to F. It is called the range. F is equal to B.
अंडरस्टैंड उसको। ओके, तो ये बहुत एक सिंपल चीज मैंने आपको बताई। अब देखो एफ ऑफ बी, वो मैं बता रहा हूँ इसके लिए। मान लो कि आपका जो रिलेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है बच्चों, राइट। ओके, हमारा फंक्शन है ए फ्रॉम ए टू बी है, जबकि ए है आपका डोमेन है 1 2 एंड 3, राइट। आपका जो को डोमेन है वो एन है, एन मतलब नेचुरल नंबर्स। चलो क्लियर। ओके, तो अब फंक्शन आया, आपने एक सेट बना दिया ए, और ये आपने बना दिया उसका दूसरा सेट ए बनाया, यहाँ पे बी आपने एक के 1 2 एंड 3। अब आपने फंक्शन के अंदर 1 रख दिया तो 1 प्लस 6 मिला आपको। ओके, बी रख दिया 2b का तो आपको 7 मिला, 3 है तो 8। सो ए इसके साथ करस्पॉन्डेंस है, इसके साथ फॉर एनी करस्पॉन्डेंस, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि एफ ऑफ 1 की इमेज आपको 6 मिल रही है, एफ ऑफ 2 की इमेज जो है वो आपको 7 मिल रही है, एफ ऑफ 3 की इमेज है वो आपको 8 मिल रही है, राइट। तो और मैं और एक लिख देता हूँ, मान लो कि 9। चलो, तो ए सेट है, क्या है बच्चों सेट, तो ए की कोई ना कोई इमेज बी में मिल रही है। तो आप जानते हो बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए अंडर एफ। बी को क्या कहा जाता है, स्मॉल बी को, ओके, ए सिंपल एफ इमेज ऑफ ए अंडर एफ। ओके, तो ए को क्या कहा जाएगा, तो ए इज अ प्री इमेज ऑफ बी। क्या है, प्री इमेज ऑफ बी, याद रखना। 1 की जो 1 का आंसर 6 मिल रहा है, तो ए क्या है, एफ इमेज ऑफ ए है, तो 1 की ये इमेज है, ओके, अंडर एफ फंक्शन, आपकी फंक्शन एफ की वजह से आई, ओके, जो बी में मिल गई। बट 1 क्या कह सकते हो, तो ये 6 की प्री इमेज है, अंडरस्टैंड, क्लियर। ओके, तो अब देखो रेंज की बात हुई बच्चों, तो ये जो आंसर आया ना, इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शंस। क्या कहते हैं आप इसको, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये तो आपका था ही, ये को डोमेन है, ये डोमेन है, और 6 7 8 जो आपको मिला वो आपका क्या है, रेंज है, अंडरस्टैंड दिस। ओके, एक सिंपल टॉपिक था, मतलब है जो बेसिक था हमारा, जो स्टार्टिंग है। ओके, तो हम लोग इसको फंक्शन से रिलेटेड करते हैं, राइट। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन है, ओके, हियर function f from a to b where a and b both are the real values, right. a and b belongs to r, real value set मतलब belongs to r, set a and set b both belongs to r, so this function is called the real function, understand, this function is called the real function, understand the simple concept of the functions, yes or no, okay. So the function हमने pair wise देखा, मतलब they are depends on the some relations a cross b that means, okay, और हमने एक सिंपल इक्वेशन से एक एग्जांपल सॉल्व किया और इसी के बेस हम लोग इक्वेशंस लाए, अंडरस्टैंड दिस, राइट। ओके, तो इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। ओके, एक सिंपल वन, जैसे कि आप बोलते हो फंक्शन, तो जैसे कि स्कूल में आपका रोल नंबर, तो क्लास के अंदर आपका जो रोल नंबर है एक बार बन गया है, तो मान लो, ओके, तो सामने आपका ही नाम होगा, तो ये भी एक तरह का फंक्शन है, ओके, समझ में आ गया। रोल नंबर 1 तो सामने आपका ही नाम होगा, तो इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द फंक्शन, ओके। चलो, कंट्री एंड दिस मतलब आल्सो द कैपिटल्स, ओके, तो वो भी एक फंक्शन है, ओके। तो रिलेशन क्या हुआ, उसका कैपिटल्स हुआ, राइट। अगर इंडिया है तो दिल्ली ही रहेगा जब तक चेंज नहीं होता तब तक, राइट। तो आप ऐसा नहीं कह सकते फिर, ओके, अंडरस्टैंड। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शंस, बेसिक हमारा एक कंसेप्ट था, ओके। चलो, अभी हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ द क्या देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं फटाफट थोड़ा, राइट। तो उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, तो ताकि थोड़ी हमारी जो है वो समझ है वो आ जाए, क्योंकि सब में उसकी इनडायरेक्टली यूज होने वाली है। इसी तो इस कंसेप्ट के बिना कुछ नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर। अगर कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर है तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये चैप्टर्स आपके लिए, राइट। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलो हियर क्या दिया है, कांस्टेंट फंक्शंस है, दे आर द टू टाइप्स। चलो, फर्स्ट ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन, रियल फंक्शन देख लिया। अगर f from a to b where a and b both are belongs to r, then okay, the function f from a to b is called the real functions, okay. Then after the constant function, also though you also learn in okay, in standard 11 I think, okay. So if k is a fixed real numbers, okay, then the function fx is, okay, given by fx is equal to k for all k belongs to r,
राइट, इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शंस। ओके, समझ में आया कि fx की वैल्यू आपको कोई कांस्टेंट मिल रही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी आपका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, वो कंफर्म हो गया। सो इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। तो इट इज क्लियर दैट के डोमेन ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन इज बिलोंग्स टू r। तो व्हाट इज द रेंज? तो रेंज यू गेट द आंसर। सो द सिंगलटन सेट k, क्योंकि fx इज इक्वल टू k मिल रहा है, यानी आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू जो सेम रहती है। सो दैट्स व्हाई इट इज रेंज इज अ सिंगलटन सेट k। सिंगलटन दैट मींस द सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट्स, या एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट, राइट। ओके, सो ग्राफ कैसा मिलेगा? द ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, सो देखो x एक्सिस है, y एक्सिस है, which is parallel to, so this line is indicating that fx is equal to k, and this z distance is called the k, right, your constant values. Understand? Okay, so it's very simple. So fx मान लो कि fx is equal to 5. Okay, so you put the of any value, f of 1 is 5, okay, f of 2 is also 5, okay, f of 3 is equal to 5, right? You put any value of x belongs to r, I'll say answer is equal to 5, 5, that means the k belongs to r, right? So this is your domain and this is your range, so it's same range, 5, 5, 5, right? So it's k singleton set. Understand? Okay, so this line are okay, that depends on, it's simple, depends on k, when k is greater than 0, right, yani positive. So above this line, above the x axis, right, it's simple. When k less than 0, okay, below x axis, right, and where k is equal to 0, then coincidence line, yani x axis 0 हो जाएगा। Understand this? Okay, it's very simple. So what is the constant function? तो आप बना सकते हो ना कि आपने कोई भी वैल्यू अगर ली, ओके, तो इट इज द कांस्टेंट फंक्शन। मान लो ये आपका सेट है, ये आपका सेट बी, राइट, यहाँ पे मैंने 1 2 3 वैल्यू ली, आपका सबका आंसर क्या आ गया, 5 आया ना। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज द दिस इज डोमेन। अंडरस्टैंड दिस, राइट, है द सेम आंसर। ओके, और कोई आंसर आपको मिल ही नहीं रहा, कोई भी वैल्यू पुट करो, so that's what it is called the constant function. So simple, domain is r, okay, range is the singleton k, okay, and graph is always straight line parallel to x axis. Okay, 3 point depends on the value of k. When k is positive value, so above the x axis, k when negative, so below the x axis. Okay, and exactly suppose 0, k is equal to 0, the coincident line, that means the x axis. Clear? Okay. So then after the identity functions, okay, again this is also important, okay, also taught in standard 11. Okay, the function that associates, okay, the each real numbers to itself, each real number itself, yani fx is equal to x, okay, the identity functions itself is called the identity function and it is usually denoted by I. So simple, the functions I from r to r, real number to real number, defined by the fx is equal to x, ix is equal to x, यानी अगर मैं यहाँ पे कोई भी f1 लिख रहा तो 1 ही मिले, 2 लिख रहा है तो मुझे 2 ही मिले, राइट। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। अंडरस्टैंड? ओके, सो फॉर सिंपल डोमेन इज आल्सो r, ओके, सो कोडोमेन r एंड रेंज आल्सो r। क्लियर? वही नंबर्स मिलेगा, अगर -1/2 तो 1/2, -1/2 भी मिलेगा, सो इट इज द बिलोंग्स टू r। Understand? Okay, the graph of this identity function is again the straight line passing through the origin. कैसी ऐसी straight line मिलेगी, okay, which is passing through the origin, right? Okay, also incline at angle of the 45 with the axis, okay, कितना angle 45, so it is the normally the identity matrix। तो बहुत सिंपल चीजें आपको ये याद रखना है, ओके, कि अगर ix इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बच्चों, x, ओके, इसीलिए डोमेन r हो गया है, रेंज भी r है, और ये 45 एंगल्स होगा, ओके।
तो ऐसे भी आ सकता है, राइट। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो सामने आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। सो इट्स अ सिंपल रीजन फॉर दिस, अंडरस्टैंड? Okay, so the identity matrix, that is the function that associated, okay, each real value get real values, same values, right? So the ix is equal to x function is denoted by, it is called the, for all x belongs to R, the identity function, domain R, range R, graph, okay, passing to the straight line and also passing to the origin, and make the angles at with x axis is 45. Understand? Clear? Okay, so there are the n other types of the, okay, चलो हम लोग और आगे उसके और टाइप्स फटाफट चेक कर लेते हैं, अंडरस्टैंड, राइट? ओके, चलो ओके, चलो बच्चों, सो मॉड्यूलस फंक्शंस, the function fx is defined by the fx is equal to mod x, where the two value, when the positive and negative, when x greater than equal to 0 then value is मतलब x, and when value is minus x when x less than 0, understand? 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब दिख रहा है यार, यहाँ पे 0 से कम है तो लेस देन है, दैट मींस तो वो हमें नेगेटिव दिख रहा है। तो सिंपल, द फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू mod x, राइट? तो x and minus x where x greater than or equal to 0 positive, x less than 0 negative is called the modulus functions, right? या also the called the absolute value function, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, also absolute वैल्यू फंक्शंस, राइट? ओके, तो देखो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सीधी बात है बच्चों, आर क्या, आर और माइनस, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो इट इज ऑल्सो द डोमेन इज आर। तो रेंज क्या होगी? तो रेंज हमें सीधी बात दिखा रही है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव। तो रेंज इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर वेयर आर प्लस, मतलब जो भी रेंज आएगी वो आर प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगा। क्यों? आपने बताया, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, अंडरस्टैंड? ओके, सो इट वेरी सिंपल। ओके, क्लियर दैट डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो गया? ओके, ग्राफ, अब ग्राफ पे चलते हैं। तो ग्राफ पे है, बहुत सीधी बात है, ग्राफ आपको वी शेप का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? वी शेप, राइट? ओके, दिस लाइन इज दिस लाइन इंडिकेटिंग द fx is equal to plus x, and when this line is also the fx, मतलब प्लस 1 पे आएगा तो माइनस 1 पे इस साइड पे आएगा, समझ रहे हो? तो दैट फंक्शंस, तो यानी एक ही x की वैल्यू 1 है तो 1 इज ग्रेटर देन अगर है और 1 माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस, तो ग्राफ ऐसे आएगा। ओके, अंडरस्टैंड दिस? ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बराबर ये आपको याद रखना है। तो देखो सबसे पहले तो x ग्रेटर देन 0, तो आप क्या पॉजिटिव वैल्यू रख दोगे? अगर नेगेटिव है तो आगे खाली नेगेटिव वैल्यू रख दोगे, बट आपको जो रेंज मिलेगी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इसलिए मैंने इसको ऐसे इंडिकेट किया। ओके, चलो प्रॉपर्टी सबसे पहले, फॉर एनी रियल नंबर x वी हैव द अंडर रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू mod x। तो mod x दैट मीन टू वैल्यू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट? चलो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि मान लो आपके पास है, चलो cos स्क्वायर x है, राइट? तो क्या हो जाएगा? रूट स्क्वायर लेके गए, राइट? अब देखो, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ कि इसकी तरह cos x पॉजिटिव यानी माइनस cos x नेगेटिव, राइट? तो यहाँ पर भी दो केस हुए ना, क्या हुए? तो क्या 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन, राइट, लेस देन और इक्वल टू π/2। क्यों? फर्स्ट क्वार्टर में cos क्या होता है? पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव, यस। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि π/2 लेस देन x, ओके, लेस देन π। चलो आ गया समझ में? बस ये याद रख लेना, ये बहुत आसान तरीका हमारे लिए याद रखने का हो गया, राइट? ओके, चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे जाते हैं। आ गया समझ में? तो ऐसे मतलब हम लोग यहाँ से इंडिकेट करते हैं, राइट? ओके, चलो तो इफ a एंड b आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर a एंड b पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो तीन आपको ये चार चीजें बहुत याद रखनी है, क्योंकि आपको ये ओके नॉर्मली किस में याद है ना, इनइक्वालिटीज में आपने थोड़ा बहुत यूज किया था, इंटरवल में यूज किया है, राइट? तो ये हमारे भी लास्ट चैप्टर में भी ये काम में आने वाला है आपको, सेकंड लास्ट चैप्टर के अंदर। ओके, इफ a b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर, चलो तो a स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर, तो mod x इज लेस देन a, राइट? सो स्क्वायर निकल गया तो मोड है, तो सीधी बात है इसकी दो वैल्यूज है कि अगर a लेस देन है तो माइनस a लेस देन इक्वल टू x प्लस a, राइट? अगर कोई रियल वैल्यू है तो ओके, समझ में आ गया? ओके, ठीक वैसे x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर है तो मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इनइक्वालिटी में आपने सॉल्व ऑलरेडी किया है। सो x लेस देन और इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस a, राइट?
ओके, अब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू निकल गया तो मोड एक्स इज इक्वल टू लेस देन है, तो माइनस है लेस देन एक्स लेस देन है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, सो मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए होगा, इसकी तरह निकल गया तो एक्स लेस देन माइनस है और एक्स ग्रेटर देन ए। ओके, तो प्रॉपर्टी कंपलसरी याद रखो क्योंकि इनडायरेक्टली हम लोग कहीं पर भी इसका यूज कर लेते हैं बच्चों, राइट। हम जितना मानते हो इतना मतलब आसानी से अगर करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, बेसिक चीज़ें वो करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई ऐसा है ही नहीं कि हम लोग करें या नहीं करें तो चलेगा। ऐसी चीज़ ये याद रख लो, रिकॉल है, क्योंकि अगर फंक्शन चैप्टर करना है बहुत अच्छी तरह से करना है तो सारे कंसेप्ट आपको चाहिए मीन्स। ओके ओके, चलो और आगे हम लोग और दो फंक्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये मॉड्यूल फंक्शंस आगे जो दिखा वो भी आपको पता है, अब हम करेंगे ओके फ्लोर फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शंस, राइट। ओके, तो चलो फटाफट वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोर फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द फंक्शन f from r to r defined for fx is equal to okay this okay ऐसे, तो for all x belongs to r is called the greatest integer function या floor function, also the step functions। क्यों steps है वो अभी पता चल जाएगा। ओके, step function, तो अगेन ओके दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद रखना। ओके, इट इज कॉल्ड द फ्लोर फंक्शंस। ओके, फॉर द स्टेप्स फंक्शन आल्सो, सो फॉर एनी रियल वैल्यू x व्हेन वी यूज द सिंबल दिस एंड या ऊपर खोला फ्लोर फंक्शन है ना, तो फ्लोर पे आप लाइन ब्रैकेट कर सकते हो। सो टू डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, याद रखना लेस देन और इक्वल टू, आपको इंटीजर लिखना है विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स जो वैल्यू दी है उससे छोटा, राइट, इक्वल टू और लेस देन, राइट। ओके, इट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ओके, तो देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 2.75 है, क्योंकि अगर आपको ऐसे डेफिनेशन से पता नहीं चलेगा तो फॉर्मूला है कि इट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है बड़ा से बड़ा लेकिन एक्स से छोटा। ओके, तो आपका 2.74 है। ओके, तो आप जानते हो ओके तो इसका इंटीजर क्या है, तो नियरेस्ट टू 3, बट आपको एक्स से छोटा तो एक्स का इंटीजर क्या है 2, तो आपका आंसर 2 एंड लेस देन 2, तो 2.75 है वो क्या है, अगर नियरेस्ट इंटीजर है तो क्या होगा 2 ही होगा ना, छोटा। ओके, 2.75 से अगर 3 लिख रहे हो तो ग्रेटर हो गया ना आपके x से, हमारा x 2.75 है ना, तो उससे तो बड़ा हो गया, आपको उससे छोटा इंटीजर लेना है, राइट। सो इट इज कॉल्ड द फ्लोर फंक्शन। ओके, नाउ 3, तो 3 तो खुद इंटीजर है तो इक्वल टू और लेस देन, तो लेस देन और इक्वल टू तो 3 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे 0.74, तो 0.74 आपने बोला सर 1 ले लेता हूँ, तो बाय डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो 1 लोगे तो 0.74 तो इंक्रीज हो गया ना 1 से, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो डेट मीन्स आप यहाँ पे 0 इंटीजर लिखोगे, अंडरस्टैंड। सिमिलरली -7.45, ओके तो 7 लिख दो, तो 7 लिखोगे तो नेगेटिव नंबर है, नंबर छोटा वो बड़ा हो जाता है, तो इससे छोटा डेट मीन्स -8, अंडरस्टैंड। सो बहुत क्लियर बात हो गई। इससे देखो ए आपका रियल वैल्यूज हो गया तो डोमेन आर हो गया, तो रेंज क्या मिला 2 मिला, 0 3 -8, तो आपको z मिला, मतलब ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, समझ रहे हो ना, बहुत आसान चीज बता रहा हूँ आपको। ओके, सो नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट मींस लेस देन और ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू x, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 है तो 2 से कम है, एग्जैक्ट 2 को टच नहीं कर रहा है। ओके, 1 से ज्यादा बट 2 से कम, राइट। फिर ये 0 से ज्यादा, तो हमने जो लिए वैल्यूज उसके हिसाब से मैंने बनाया, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से चेक करो, ये आपके लिए याद रखना है, क्योंकि अगर ये वैल्यू आए तो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसके बिना पॉसिबल नहीं है फिर। ओके, नॉर्मली समझ के करना, राइट। तो फिर जैसा फ्लोर है तो सीलिंग फंक्शन भी होगा ही, अंडरस्टैंड, गॉट इट। ओके, तो बहुत बेसिकली था, ये हमने आपको बता दिया, ये समझ में आ गया। ओके, तो इसका ग्राफ है, ध्यान से देखो तो वाई, ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टेप फंक्शंस, राइट, क्लियर। तो फ्लोर फंक्शन भी कह सकते हो, आपको स्टेप फंक्शन भी कह सकते हो। ओके, फ्लोर फंक्शन, स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, चलो क्लियर, अंडरस्टैंड टॉपिक्स, ये चीज समझ में आ रही ना। ओके, तो देखो इससे भी तो आपको यहाँ पे लेना है लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो जो वैल्यूज है उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इंटीजर ही लेना है, राइट।
बट द लेस देन और इक्वल टू योर एक्स। क्लियर? ओके, कोई डाउट इसके अंदर नहीं ना? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ओके, चलो यदि द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है या सीलिंग फंक्शन, द फंक्शन ऑफ f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx। ओके, हमने सीलिंग बताया, देखो वहाँ पे स्पेस रखा है जैसे फ्लोर में छोड़ा था ना ऐसे, राइट? तो फॉर द ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन, या ऑल्सो इट इज ऑल्सो द स्टेप फंक्शन, राइट? ओके, तो बहुत सिंपल है, समझ में आ गया? थोड़ा ही चेंज है, फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू द सीलिंग फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, right? Okay, for any real value x we use the symbol, okay, this नीचे ओपन है तो इसीलिए आप क्या समझ सकते हो, ये सीलिंग फंक्शन है, राइट? सो टू डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, वहां पे उसने क्या लिया था आपने, लेस देन और इक्वल टू लिया था, यहाँ पे आप ग्रेटर देन और इक्वल एक्स से आपकी वैल्यू से बड़ी वैल्यू लेनी है, बट इंटीजर वैल्यू, राइट? बहुत सिंपल है समझने में अब तो। ओके, तो चलो एग्जांपल देखते हैं बच्चों, 4.7, हाँ, तो 4.7 से बड़ा इंटीजर कौन हो सकता है? 5, यस, तो यू रिटर्न हियर 5। चलो -7.2 से बड़ा आपका है वो कौन हो सकता है बड़ा वैल्यूज, तो आप यहाँ पे तो क्या लिख सकते हो, -7, राइट? क्योंकि 8 लिखोगे -8 तो छोटा हो जाएगा, इसीलिए बहुत सिंपल है ना? ओके, चलो 1.7, तो वहां पे आपने 0 लिखा था, 1, क्योंकि 0.7 के 75 है बराबर, उससे बड़ा कोई भी इंटीजर होगा तो 1 होगा फर्स्ट, राइट? 5 है तो सीधी बात है 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। आ गया समझ में? ओके, ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, राइट? तो अगेन बच्चों डोमेन क्या है, आर, ओके, रियल नंबर्स। ओके, तो रेंज क्या मिलेगी हमें, तो रेंज में आप देखो इंटीजर ही मिलेगा आपको, क्योंकि इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर या ग्रेटेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट इंटीजर बराबर फंक्शन है, तो सीधी बात है रेंज आपको z मिला, z मतलब ऑल सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट? 0 भी हो सकता है। ओके, चलो अब तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, तो सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टेप फंक्शंस। ध्यान से देखो, ओके, 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा नहीं है, ओके, तो बहुत इजीली आप इसको मेजर से चेक कर सकते हो, राइट? तो आप ऐसे और भी एग्जांपल्स बना के आप बहुत इजीली बता सकते हो, मुझे भी और नॉर्मली हमारे अंदर, राइट? चलो, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर देख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लिया, ओके, तो सिग्नम भी आप जानते हो, सिग्नम फंक्शन भी, राइट? तो सिग्नम फंक्शन में नॉर्मली क्या होता है बच्चों, तो सिग्नम फंक्शंस के अंदर आप क्या करते हो, बराबर 3 वैल्यूज मिलते हैं ना आपको, 1, -1 एंड 0, तो उसके अंदर जो रेंज होता है, ओके, सिग्नम फंक्शन होता है वो उसके लिए, तो सिग्नम फंक्शंस आपको बताइए है ना, ओके? सिग्नम फंक्शन तो क्या है, नॉर्मली fx इज इक्वल टू, दो अलग अलग फॉर्म है, 1, 0, -1, x की वैल्यू पर के ऊपर डिपेंड है, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0, राइट? सो इट्स कॉल्ड द सिग्नम फंक्शंस, राइट? बहुत आसान है। ओके, तो डोमेन भी आप लिख सकते हो इसका, डोमेन क्या मिलेगा बच्चों, r, राइट? ऑल्सो द रेंज, तो रेंज तो आपको सीधे दिख रही है ना, 3 ही मिल रही है, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली -1, 0 एंड 1, राइट? ये आपका रेंज है, बस तो ग्राफ भी उसी 3 के लाइन के अंदर ही आएगा, एक्स एक्सिस ऊपर 1 नीचे -1, राइट? तो बहुत इजी हो गया सिग्नम फंक्शन तक। ओके, सो बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मेन चीज शुरू करेंगे 1 ऑन 2, ओके, बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, ओके, फंक्शंस एंड द एक्सरसाइज। ओके, ये बेस बहुत ज़रूरी था, इसीलिए आपको मैंने बता दिया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि बहुत नए सारे वीडियोस आपको मिलते रहे अलग अलग चैप्टर्स के। और कमेंट बॉक्स में जाओ बच्चों, उसमें कोई कमेंट डालो, ओके, अच्छा लगे तो। ओके, तो चलो, टिल देन एंड बाय बाय।